নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব স্যাৰ আৰু সমূহ দৰ্শকক আমি আমাৰ লালান্স কোচিং ক্লাसेस আৰু লালান্স ইন্টিগ্ৰেটেড একাডেমিৰ ফালৰ পৰা এই ইন্টাৰভিউৰ অনুষ্ঠানত ক্ষিতিশ কুমাৰ বৰা স্যাৰ আৰু সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি লালান্স কোচিং ক্লাছ আৰু লালান্স ইন্টিগ্ৰেটেড একাডেমিৰ অনলাইন ক্লাसेस আৰু JEE নিটৰ প্ৰিপাৰেচনৰ কাৰণে কেনেকৈ প্ৰিপাৰেচন কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে আমি সমূহ জানিবলৈ ইয়াতে আমি উপস্থিত হৈছো। So hello everyone, I am Nikhil and I am with my co-host Mojamil sir. This is the first video of upcoming Lalans initiative, Journey to Your Dream College. So before diving into today's session, let me give you a simple idea of this initiative. So this initiative will help students from class 9 to 12th to choose their career path and plan the journey of their preparation, and will help the parents to take right decision for their batch. For this, we will be inviting one of our experienced faculty in each of the session from LCC or LIA to share their wisdom and thoughts such that ambition and aspiration. And not only this, and at the end of every session, we will be having a section for preparation and revision strategy for each subject with our specialized faculties. Now, coming to the second point, I would like to welcome Kshitij Bora sir, who is very popular among students for his concise notes and is a very motivated and dedicated faculty of physics. He teaches for JEE and NEET, and he is also examination and academic controller of LIA, and he is also HOD of pre-foundation. So without wasting further time, I would like to ask the first question from Kshitij sir, which is very popular among the parents and among the junior students, which we call as pre-foundation students. What is the ideal class to start preparing for JEE or NEET? So sir, I would like your thoughts and wisdom about this. First of all, thank you very much, Nikhil, for the warm introduction of mine. And I would like to welcome all the viewers who are currently watching this session. Now the question asked by Nikhil is that what is the ideal class from which a student must prepare in order to prepare themselves for competitive examinations? अगर हम इसकी बात कहा जाए, मतलब कि आइडियल क्लास क्या है, तो एक्चुअली एक कोई भी पर्टिकुलर स्टूडेंट हो तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्लास 8 से ही बिल्डअप होना चाहिए। क्लास 8 से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये ऐसा हो सकता है कि मतलब व्यूअर्स को ऐसा लगे कि क्लास 8 में जो बच्चों के उम्र होते हैं वो कम होते हैं, तो इतने छोटे उम्र में कॉम्पिटिटिव माइंड के बारे में हम लोग उनको कैसे समझाएं। तो ये कोई कॉम्पिटिटिव माइंड या कंपटीशन के तरफ हम भगा नहीं रहे, लेकिन कंपटीशन मतलब क्या है? कंपटीशन जहां है वहां पर हम खुद को कहीं ना कहीं बेहतर कर रहे हैं। दैट इज द थिंग, हम लोग खुद को बेहतर कर रहे हैं। और अगर बेहतर करना है तो बेसिक जो फाउंडेशन कहते हैं, जो बेस होता है या कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए क्लास 8 से मेरा मानना है, या मतलब जो भी हो, जितना भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स यही स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि क्लास 8 से ही स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कराते हैं, ताकि उन लोग का जो बेसिक एबिलिटी है, मैथमेटिकल हो या रीजनिंग हो या लर्निंग हो, वो एबिलिटी इंक्रीज हो। और साथ में क्लास 9 से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इफ द स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर competitive examinations like JEE, NEET, the examinations are for engineering and medical. तो वहां पर बहुत ही जरूरत होता है, क्योंकि 9 से ही साइंस और मैथ्स की बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है, जहां पर उनका कॉन्सेप्ट वहां से स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है। तो मैं यही कहूंगा कि क्लास 8 से ही बच्चों को इन डेप्थ लर्निंग की जरूरत है। थैंक यू सर। आई होप कि अब पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को ये क्लैरिटी आ गया होगा कि किस क्लास से एटलीस्ट प्रिपरेशन और सोचना JEE और NEET के बारे में शुरू कर देना चाहिए। एक सर फॉलो अप क्वेश्चन है
कि सर ललन कोचिंग क्लासेस या ललन इंटीग्रेटेड एकेडमी में प्री फाउंडेशन कोर्स के लिए, जैसा कि आप HOD हैं प्री फाउंडेशन के, तो हमारे ललन कोचिंग क्लासेस और ललन इंटीग्रेटेड एकेडमी में ऐसा कोई कोर्स या स्पेशलाइज्ड कोर्स फॉर प्री फाउंडेशन बैचेस है कि नहीं? बिल्कुल है, प्री फाउंडेशन का बैचेस हम लोग का पहले से ही चल रहा है और हम लोग वहाँ पर स्टूडेंट्स को क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। प्री फाउंडेशन में स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के जो कोर्सेस है NCERT वो पढ़ाया जाता है, साथ में नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो NTSE से जाना जाता है, इन शॉर्ट लोग इसको याद रखते हैं NTSE, तो उसके लिए भी हम लोग प्रिपेयर कराते हैं। वहां पर वही सिलेबस के ही क्वेश्चंस आते हैं, बस इन डेप्थ लर्निंग की जरूरत होती है। और बच्चों को सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग एकेडमिक्स ही प्रोवाइड करते हैं, एकेडमिक्स ही पढ़ाते हैं, बच्चों को हम लोग स्पेशल केयर लेते हैं, क्योंकि वो उम्र एक स्टूडेंट का कहीं ना कहीं छोटा सा उम्र है, मतलब इतना मैच्योर्ड नहीं है, तो हर फैकल्टी फ्रेंडली बिहेव करते हैं, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहता है, बच्चों के साथ दोस्त बन जाते हैं, बच्चे फ्रीली डाउट पूछ सकते हैं, बच्चे फ्रीली कोई भी प्रॉब्लम हो वो बता सकते हैं। और साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि बातों से नहीं, मैं रिजल्ट से मैं बताऊंगा कि हम लोग का कितना बढ़िया रहा है। तो हम लोग का फर्स्ट बैच जो था तो वो 2019 था, 19-20 में, तो उस सेशन में हम लोग का ओनली 7 स्टूडेंट्स थे क्लास 10 में, और 7 स्टूडेंट्स में से 5 स्टूडेंट्स को NTSE क्वालिफाई वो लोग किए थे, तो ये एक बहुत बड़ा सक्सेस रेट है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं ये That's a huge achievement, right? Sir, thank you, sir. So I would like পোনপ্ৰথমে মই স্যাৰ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বোৰ্ড আৰু কোচিঙৰ প্ৰস্তুতি একেলগে কেনেকৈ ল'ব পাৰিব, এই বিষয়ে স্যাৰ আমাক অৱগত কৰক। बोर्ड और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशনৰ কাৰণে যদি আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰো তেনেহলে তাত ইন্টিগ্ৰেটেড কোর্স কারিকুলাম যোনটো হয় সেইটো আমাৰ ইয়াত আছে, প্ৰোভাইড কৰা যায়। আৰু মই কম ওয়ান অফ দা বেষ্ট কারিকুলাম য'ত ষ্টুডেন্ট এটাই मैक्सिमम सेल्फ स्टडी, মানে সেল্ফ স্টাডি কাৰণে मैक्सिमम টাইম দিব পাৰিব, কাৰণ স্কুলিং আৱাৰ্স হতে মানে স্কুল যাওঁতে একেলগতে বোৰ্ডৰ সিলেবাস আৰু লগতে এন্ট্ৰেন্সৰ সিলেবাস পঢ়োৱা হয়, কভাৰ আপ কৰা হয়। আৰু তেওঁলোকে ইভিনিং কোনো বেলেগ কোচিং ইনষ্টিটিউটত যাব নালাগে। এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে যেতিয়া প্ৰিপাৰেচন কৰে কোচিং কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশনৰ কাৰণে, তেওঁলোকক সেল্ফ স্টাডি সবতছে বেছি প্ৰয়োজন সেল্ফ স্টাডি। আৰু সন্ধিয়া সময়ত যদি এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে যদি ক'ৰবাত যাব লগা হয় বেলেগকে কোচিঙৰ কাৰণে, যে সেল্ফ স্টাডি সময়টো কমি যায়। সো ইন্টিগ্ৰেটেড কাৰিকুলামত নিশ্চয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰিপাৰেচন কৰিব পাৰিব সাইমালটেনিয়াছলি ফৰ বোৰ্ড এণ্ড এন্ট্ৰেন্স। আৰু আমাৰ ইয়াত সেইটো প্ৰোভাইড কৰা হয়। আমাৰ ইন্টিগ্ৰেটেড একাডেমি ৰিজাল্ট বোৰ্ডত আগতে বহুত ভাল আছে, 95+% ষ্টুডেন্ট আহিছে, আৰু লগতে ষ্টুডেন্টছৰ JEE থ্ৰু দি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজতো ইন্টিগ্ৰেটেডে একেবাৰতে তেওঁলোকৰ সিলেকশন হৈছে। ধন্যবাদ স্যার। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আহিছো স্যাৰ। সৰু সৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত আপুনি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ গঢ় দিব পাৰিছে কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ, তাৰ কাৰণে স্যাৰ আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ কৌশল অৱলম্বন কৰিছে আমাক অলপ জনাব স্যাৰ। কৌশল মানে মই কম কি যে এজন যদি শিক্ষক হয় তেনেহলে শিক্ষক এজনৰ ডাইনামিক নেচাৰ হ'ব লাগে। মইতো কম ডাইনামিক নেচাৰ হ'ব লাগে। ডাইনামিক মানে যদি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যদি কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশনৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰাই আছো, মানে তেওঁলোকে 45টা কুৱেশ্যন নিটত বা 25 আৰু নতুন JEE প্যাটাৰ্ণৰ মতে 30 কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত 25টা কুৱেশ্যন এটেম্প্ট কৰিব লাগে উইদিন 1 আৱাৰ। ডিফিকাল্টি লেভেলটো আমি জানোৱে। সো তেওঁলোকে যদি সেই তেনেকে যদি 1 আৱাৰ কুৱেশ্যন যদি তেওঁলোকে এপিয়াৰ হ'ব লাগে, তেনেহলে তেওঁলোকৰ এটা ডাইনামিক নেচাৰ হ'ব লাগিব, এবিলিটি টু থিংক, এবিলিটি টু ৰিয়েক্ট কুইকলি, এই বস্তুটো হ'ব লাগিব। আৰু মই ভাবো আমাৰটো প্ৰতিজন শিক্ষকৰ আগতে তেওঁলোকে যেনেকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী ৰিজাল্ট আহিছে আগৰ পৰা,
তাৰ দিটো অলৰেডি আমি প্ৰুফ কৰি ৰাখিছো যে আমাৰ কিমান এবিলিটি আছে কিন্তু লগতে যোৱা বছৰ যেনেকে লকডাউন হ'ল আমি যেনেকে অনলাইন ক্লাसेছত মুভ কৰিছো মই কম কি যে ওয়ান অফ দা বেষ্ট অনলাইন লাইভ ক্লাसेस গোটে নৰ্থ ইষ্টত আমি প্ৰভাইড কৰিছো ফাৰ্ষ্টত আমিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো অনলাইন লাইভ ক্লাसेस আৰু লগতে একদম ক্লাছৰুম টাইপ খালি মই নিশ্চয় মানিছো যে এটা ভাৰ্চুৱেল ক্লাছ ন কিন্তু প্ৰপাৰ টাইম টেবুলৰ মতেই কিন্তু ক্লাছ আৰম্ভ হয় মানে 10টা পৰা যদি এটা ক্লাছ আছে 10টা পৰা আৰম্ভ হ'ব তাত কোনো দেৰি নহয় আৰু ক্লাसेছৰ ৰেকৰ্ডিংও হয় আৰু ক্লাसेছ প্ৰভাইড লগে লগে ৰেকৰ্ডিং যাৰ ষ্টুডেণ্টৰ নেটৱৰ্ক ইছ্যু থাকে তেওঁলোকক প্ৰভাইড কৰা যায় আৰু বেক সাইডে মই স্ক্ৰীনখনতো ধৰিব পাৰিছা যে আমি অনলাইনৰ কাৰণে কিমান এৰেঞ্জমেন্ট কৰি ৰাখিছো যাতে ষ্টুডেণ্টছক আমি মোটিভেট কৰিব পাৰো বা এট্ৰেক্ট কৰিব পাৰো যাতে তেওঁলোকে ষ্টাডিজত এনি টাইম ইনভলভ থাকে বা তেওঁলোক আগ্ৰহে মানে পঢ়ি থাকে সো আমি আমাৰ ডাইনামিক নেচাৰটো মানে প্ৰুভ কৰিছো আমি এনেকুৱা নহয় যে লকডাউন হৈ গ'ল আমি কি কৰিম তেনেকুৱা নহয় আমি নিজে যিকোনো সিচুৱেশন হওক যিমান ক্ৰিটিক্যাল সিচুৱেশন কিয় নহওক আমি নিশ্চয় সেই হিচাপত আমি মুভ কৰিম সো লৰা ছোৱালীৰ কাৰণেও আমি ষ্ট্ৰিক্টটো হয় যাতে লৰা ছোৱালীয়ে অলপ ভয় কৰে ডিসিপ্লিন যাতে থাকে লগতে পঢ়াৰ সময়ত কেতিয়াবা এনেকুৱা ধেমালি কৰা যায় লৰা ছোৱালী যাতে আমাক এজন বন্ধু হিচাপে ভাবে পটককে যাতে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে মই এটা উদাহৰণ হিচাপে কওঁ মই এইটো উদাহৰণ কোৱাটো মই ভাবো এটা বহুত ভাল উদাহৰণ মোৰ মনত পৰিছে গতিকে মই ৰিসেন্টলি লালান্সৰে এটা বেটছত পঢ়াই আছো পঢ়াই থাকোঁতে মোক ঘপকে আগৰ ছাত্ৰী এজনীৰ কথা মনত পৰিছিল ছাত্ৰীজনীক মই ধেমালিতে অলপ বদমাছ বুলি কওঁ বদমাছ বুলি এইটো কাৰণে কওঁ হোমৱৰ্ক যেতিয়া দিয়া যায় অনলাইন ক্লাছত তাই লগে লগে হোমৱৰ্কটো কৰি দিয়ে এইটো কাৰণে হোমৱৰ্কটো কৰে যাতে কিবা কাৰণত পাহৰি গ'লে যাতে একো নহয় মানে পাহৰি গ'লে নপা থাকি যাব আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি আকৌ যাতে কপিখন খুলিব নালাগে এইটো এটা বদমাছি মানে কিন্তু সেই বদমাছিটো এটা ভাল গুণ আছে কি সেই ছাত্ৰীজনীয়ে যিটো পঢ়ুৱা গ'ল লগে লগে হোমৱৰ্কটো কৰি একদম কুইকলি মানে আল্টিমেটলি যিয়ে নহওক তাই সময়টোতো বচাইছে যে বেলেগ এটা মানে অকমান টাইম সন্ধিয়া সময়ত তাই বেলেগ কিবা এটা কৰিবলৈ খেলিবলৈ বা ধেমালি কৰিবলৈ এটা সময় ওলাইছে কিন্তু সেই সময়টো যদি উলিয়াইছো ইয়াত মানে অসুবিধা হোৱা নাই তাই কাৰণ লগে লগে হোমৱৰ্কটো কৰা মানে তাই পঢ়িছে না লগে লগে বুজি পাইছে আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে হোমৱৰ্ক বিলাক অলপ দীঘলীয়া থাকে তেতিয়া ক্লাছৰ পিছতে যদি সময় আছে লগে লগে লাগি যায় আৰু লগে লগে মোক স্কেন কৰি পঠাই দিয়ে আৰু এই কথাটো মোক ঘপকে মনত পোৱাৰ লগে লগে যেনেকৈ মই বেটছটোত কলো মোৰ নিজৰে পিছত ভাল লাগিলে মই ভাবা নাছিলো ক্লাছটো এণ্ড কৰাৰ পিছত লগে লগে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট মই আপোনাক কৈছো 90% স্টুডেন্টস লগে লগে হোমৱৰ্ক মোক সেন্ড কৰি দিছে সো স্টুডেন্ট পটককে মোটিভেট হৈ যায় মানে আমাৰ কথাবিলাক যোনবিলাক থাকে মোটিভেট হৈ যায় সো এইটো এটা মানে মই কম আমাৰ কৌশল বুলি এনেকুৱা কোনো পাৰ্টিকুলাৰ ষ্ট্ৰেটেজি এনেকুৱা কোনো মানে ইনস্ট্ৰাকটিভ লাইন টাইপ একোটো হ'ব নোৱাৰে সো আমি বেলেগ বেলেগ কৌশলে প্ৰতিটো ষ্টুডেন্টক যেনেকে যি দৰকাৰ হয় কাৰণ প্ৰতিটো ষ্টুডেন্টৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং তেওঁলোকৰ থট প্ৰসেস বেলেগ হয় প্ৰতিটো ষ্টুডেন্টক যেনেকুৱা বিহেভিয়াৰ বা যেনেকে তেওঁলোকে বিচাৰে আমি তেনেকুৱাই তেওঁলোকৰ লগত মানে এটা ৰিলেশন বিল্ড আপ কৰি তেওঁলোকক সদায় মোটিভেট কৰো বহুত ধন্যবাদ স্যাৰ এই বিষয়ত সবিশেষ আমাক জনোৱাৰ বাবে মোৰ নেক্সট এটি প্ৰশ্ন আপোনালৈ আগবঢ়াম স্যাৰ অনলাইন ক্লাছ আৰু পৰীক্ষাৰ কাৰণে লালান্স ইন্টিগ্ৰেটেড একাডেমি আৰু লালান্স কোচিং ক্লাছে কেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ফকাছড আৰু মোটিভেটেড ৰাখিব পাৰিছে সিহঁতৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ কাৰণে এই বিষয়ত আপুনি কিবা অলপ ক'ব নেকি স্যাৰ মোটিভেশনৰ কথাটো অলপ মই ক'লোৱে যে ক্লাছত আমি কেনেকৈ মোটিভেট কৰো এটা মোটিভেশন যোনটো থাকে সেইটো মোটিভেশনটো কন্টিনিউয়াস কেনেকৈ থাকিব সেইটো এটা কিন্তু নিশ্চয় এটা মানে প্ৰশ্নৰ কথা কাৰণ ল'ৰা ছোৱালী অকমানতে কেতিয়াবা ফ্ৰাষ্ট্ৰেট হ'ব পাৰে মোটিভেশনটো ব্ৰেক হ'ব পাৰে এইটো বহুত এটা মানে প্ৰয়োজনীয় কথা সো ইহঁতৰ যাতে মোটিভেশনটো ব্ৰেক নহওক সেইটো কাৰণে আমি কি কৰো যেতিয়া টপিক পঢ়ুৱা যায় লগে লগে আমি হোমৱৰ্ক দিওঁ এনেকুৱা নহয় কি মানে জোখতকে বেছি হোমৱৰ্ক মানে সেইদিনাই কৰিব পৰা হোমৱৰ্ক দিওঁ কন্টেন্ট ৰিলেটেড আৰু লগতে আমি ডেইলি প্ৰেক্টিস প্ৰবলেম যোনটো শৰ্টত ডিপিপি বুলি কওঁ সেইটো প্ৰভাইড কৰো আৰু ডিপিপি এনেকুৱাকে প্ৰভাইড কৰা হয় ডিপিপি ফেকাল্টিজে নিজে বনায় আমাৰ এনেকুৱা নহয় কি মানে কৰবাৰ পৰা আমি লৈ পেলাই বককে দি দিলো নিজে বনালে কি হয় ফেকাল্টি এটা মানে লেভেল ওয়াইজ ডিপিপি বনায় যে প্ৰথম প্ৰশ্নকেইটা অলপ সহজ হ'ব লাহে লাহে ডিফিকাল্টি লেভেলটো বাঢ়িব
তো ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰে, যেতিয়া প্ৰশ্নটা কৰে তেতিয়া যেতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটো কৰিলে পাৰিলে, দ্বিতীয়টো কৰিলে পাৰিলে, তৃতীয়টো কৰিলে পাৰিলে, তাৰ যোনটো কনফিডেন্স আহে ল'ৰা ছোৱালী, সেই কনফিডেন্সটোৱে তেওঁলোকক মটিভেট কৰে। আৰু কিবা এটা যদি তেওঁলোকৰ কোনোবা এটা কুৱেশ্যনত যদি তেওঁলোকে পাৰা নাই, তেতিয়া তেওঁলোকৰ সেই কুৱেশ্যনছ খিনি, প্ৰতিটো কুৱেশ্যন যোনবিলাক ষ্টুডেণ্টে কয় যে ছাৰ আমি পাৰা নাই, আমি নেক্সট ক্লাছত আমি সেইবিলাক ডিছকাছ কৰোঁ। ইভেন কাৰোবাৰ যদি কোনোবা এটা টপিক কেতিয়াবা ক্লিয়াৰ নহয়, তেতিয়া সেইবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত ডাউট ক্লাছ কৰা হয়। ডাউট ক্লাছ মানে এনেকুৱা নহয় যে এটা দুটা ডাউট ক্লিয়াৰ কৰি কৰি দিলোঁ, আমি ইভেন টপিকো কেতিয়াবা ৰিভাইজ কৰোঁ। আৰু আমাৰ এটা লক্ষ্য সদায় এইটোৱে থাকে যে যিকোনো ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে যেনেকে এডমিশ্যন ল'লে, ডে 1ৰ পৰা একদম লাষ্টলৈকে যেতিয়ালৈকে এক্সাম দিব তেওঁলোকে, তেতিয়ালৈকে আমি তেওঁলোকৰ লগত আছো দেই। এনেকুৱা নহয় কি আমাৰ একাডেমিক সেশন শেষ হৈ গ'ল আৰু তাতে আমাৰ ক্লাছ শেষ হৈ গ'ল। যদি JEE এক্সাম এতিয়া ক'ব গ'লে পিছুৱাই দিছে, এতিয়া কেতিয়া কি হ'ব, বা নিট পিছুৱাই দিছে 1 আগষ্টৰ, আমি নিটৰ হেৰি হৈ আছে যে হ'ব। চ' জেনেৰেলি নিট আগতে মে মানতে হৈছিলে, কিন্তু এতিয়া আমি 1 আগষ্টলৈকে কিন্তু যোনটো কাৰেণ্ট বেটছ আছে যোনে নিট দিব এইবাৰ, তেওঁলোকৰ কিন্তু ক্লাছ চলি থাকে, ষ্টুডেণ্টে জইন কৰে আৰু তেওঁলোকে আমাৰ পৰা আকৌ ডাউট বা ৰিভিজন তেওঁলোকে কৰি থাকে। চ' আমি ষ্টুডেণ্টক তেনেকে এনি টাইম মটিভেট কৰি ৰাখোঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ ছাৰ। এতিয়া মই নিখিল ছাৰক অনুৰোধ কৰিম নেক্সট প্ৰশ্ন সুধিবলৈ। Thank you, Mujamil sir. Thank you, Chittit sir, for sharing some deep thoughts and deep wisdom about the preparation and the journey of preparation. Sir, मेरा next सवाल, coming to the last section of today's session, मेरा next सवाल उन बच्चों के लिए है जो इस साल अपना 2021 में अपना फाइनल एग्जाम अपना JEE का और नीट का देने वाले हैं। तो उनके लिए आप रिवीजन टिप्स, रिवीजन स्ट्रैटेजी और फिजिक्स में, खास करके फिजिक्स में किस तरह से वो अपना प्लानिंग करें, किस तरह से डेली क्वेश्चन बनाएं और रिवीजन का प्लानिंग कैसा हो, वो आप अगर उनको बता सकें तो उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। प्लीज सर। बिल्कुल, चूंकि हमारे व्यूअर्स ऐसा नहीं है कि हमारे स्टूडेंट्स ही होंगे, व्यूअर्स ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर नॉर्थ ईस्ट, जो भी यहाँ पर हमारा वीडियो अभी देख रहे हैं, तो वहाँ पर अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के या अलग अलग रीजन से स्टूडेंट्स होंगे। तो अगर मैं टिप्स की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे स्टूडेंट्स को कैटेगराइज करना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके प्रिपरेशन जो कंटेंट है वो बहुत स्ट्रांग है, मतलब पूरा प्रिपरेशन रेडी है। कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसे होंगे, तो उनके लिए अभी यही है कि वो अपना पेशेंस को ना खोए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंस नहीं खोना। और चूंकि कंटेंट रेडी है तो वो खाली क्वेश्चंस जो है वो प्रिपेयर करते रहे, क्वेश्चंस को लगातार करते रहे। कई बार स्टूडेंट थक जाते हैं क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन होते रहते हैं, तो स्टूडेंट थक जाते हैं कि कितना देर तक मतलब वो एंजाइटी लेकर बैठे रहेंगे कि एग्जाम का एंजाइटी लेकर कब तक बैठे रहेंगे। तो कोविड-19 जो हम लोग का अभी जो भी पैंडेमिक चल रहा है, वो कोई हम लोग का बुलाया हुआ मेहमान तो है नहीं, पूरा विश्व इसके साथ लड़ रहा है। तो अभी सबको लड़ना ही है, उसमें हम लोग का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर कोविड-19 के साथ अगर हमारे डॉक्टर्स अगर इतना बढ़िया फाइट कर रहे हैं, हमारे अगर एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी ऑल ओवर इंडिया की बात करी जाए तो वो लोग जैसे फाइट कर रहे हैं, तो अगर एक स्टूडेंट खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं वही मेडिकल के लिए, जहां पर उनको डॉक्टर बनना है, जहां पर उनको इंजीनियर बनना है, तो वो लोग अगर उस लेवल की मतलब उस प्रोफेशन के लिए वो लोग अगर तैयारी कर रहे हैं, तो उनका हार मानने का तो सवाल हो ही नहीं सकता। क्योंकि जैसे डॉक्टर अभी हार नहीं मान रहे, तो वो अगर अभी हार मान जाएंगे तो कैसे? तो बिल्कुल पेशेंस नहीं खोना है, तो बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहना है। और साथ में कुछ स्टूडेंट का ऐसा भी हो सकता है उन्हीं में से कि थोड़ा सा किसी टॉपिक में थोड़ा सा वीकनेस हो, तो उस टॉपिक को लेकर ऐसा नहीं कि 2-3 दिन लगा देंगे, क्योंकि रिवीजन ब्रेक होगा तो प्रॉब्लम होगा। तो टॉपिक अगर कहीं पे थोड़ा बहुत देखना है तो थोड़ा स्मार्टली देखें कि आज का पहला हाफ में टॉपिक रिवीजन करूंगा और बाकी क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
अल्टीमेटली रिवीजन अगर वीक हो गया तो मुश्किल होता है, क्योंकि इंसान का एक नेचर होता है कि वो भूलता है, तो कंटेंट अगर भूलेगा तो प्रॉब्लम होगा। दूसरा कैटेगरी का स्टूडेंट ऐसा होगा जो एवरेज में है, जिनका ऐसा एकदम पूरा बहुत बढ़िया कंटेंट भी नहीं है, लेकिन हाँ अगर कंटेंट रिवाइज करे, अगर कंटेंट को थोड़ा और पढ़ ले, कॉन्सेप्ट को अगर थोड़ा पढ़ ले, तो बिल्कुल उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। तो ऐसा भी स्टूडेंट्स होंगे, तो उनके लिए तो ये एडवांटेज हो गया, उनको तो कोई बहाना या कोई मतलब एक्सक्यूज की तो बात ही नहीं आती। अगर ये टाइम जो मिल रहा है बीच में, तो वो तो कहीं ना कहीं उनके लिए एडवांटेज हो गया कि उनको सफिशिएंट टाइम मिल रहा है, तो वो क्विकली थोड़ा जो है वो कोर्सेज को थोड़ा पढ़े। क्विकली पढ़ना पड़ेगा, क्विकली पढ़ने के लिए मैं तो कहूँगा थोड़ा गाइडेंस की जरूरत है। तो गाइडेंस के लिए क्रैश कोर्सेज खोल चुके हैं, हम लोग का भी क्रैश कोर्स चल रहा है, या क्रैश कोर्स हम लोग के यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उससे क्या मिलेगा, एक गाइडेंस मिलेगा कि वो लोग क्विकली कैसे करें। नहीं तो टाइम अगर ज्यादा कंज्यूम कर लेंगे कंटेंट प्रिपरेशन में, तो रिवीजन तो मतलब जो फाइनल प्रिपरेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक एडवांटेज है, तो वो तो मतलब मैं उनके लिए ये एडवांटेज मानता हूँ, तो वो ऐसा वो इस एडवांटेज का बस फायदा होता है। और तीसरा कैटेगरी का स्टूडेंट ऐसा होगा जो थोड़ा कॉन्फिडेंस लो है, क्योंकि कंटेंट स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में कई स्टूडेंट्स बदमाशी भी करते हैं, जो क्लासेस रेगुलर नहीं किए होंगे, जो डिसिप्लिन नहीं रहे होंगे, तो उनके लिए तो बहुत थोड़ा ऐसा होगा कि थोड़ा टेंशन का माहौल हो सकता है। तो फिजिक्स का मैं पर्टिकुलर यहाँ पर कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का ही गाइडेंस देना ठीक रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन वाला बात होगी। तो फिजिक्स का अगर मैं बात करूं तो वो लोग कहीं ना कहीं एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी, अभी एनसीईआरटी खोल के बैठेंगे तो नहीं होगा, बिकॉज एनसीईआरटी इज वेरी प्रिसाइज and it is very difficult to understand from the textbook. It is very difficult. So NCERT based book से वो लोग थ्योरी को क्विकली पढ़े, क्विकली गेन करें, और उनको भी गाइडेंस की जरूरत होगा, गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होगा। फॉर दैट दे वुड रिक्वायर पर्सनल गाइडेंस फ्रॉम टीचर्स, और साथ में वो लोग HC वर्मा फिजिक्स के लिए सॉल्व करें। HC वर्मा में एक फायदा क्या होता है, HC वर्मा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 करके होते हैं हर एक चैप्टर में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 में सिंगल चॉइस होता है एंड 2 में मल्टीपल चॉइस होता है। तो वहां पर एक फायदा क्या है, हर एक क्वेश्चन में बच्चों को एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है। मैं HC वर्मा इसलिए कह रहा हूं उनके लिए, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स अगर कॉन्सेप्ट वीक है तो HC वर्मा नहीं किया है, मतलब ये एक हो सकता है। तो HC वर्मा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां पर कम क्वेश्चंस में बहुत कॉन्सेप्ट सीखने को, कम क्वेश्चन में बहुत कॉन्सेप्ट सीखने मिलता है, तो इसलिए कम टाइम में वो बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे और वो एग्जाम के लिए तैयारी कर पाएंगे। तो यही एक स्ट्रेटेजी है। तो मैंने तीनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए मैंने स्ट्रेटेजी बताया है। थैंक यू सो मच सर। आई फील कि अब जो भी बच्चे हैं, आपने तीनों कैटेगरी के बच्चों को देखा और कि तीनों कैटेगरी के बच्चों के लिए स्पेशलाइज्ड, एक तरह से पर्सनलाइज्ड सजेशन दिया। आई होप वो ये फॉलो करेंगे तो जरूर आगे आने वाले एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे। सर एक फॉलो अप क्वेश्चन है कि बहुत सारे बच्चे जो अभी सोच रहे हैं कि शायद मैं किसी कोचिंग के गाइडेंस में नहीं तो किसी सर के गाइडेंस में मेरा एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट और इम्प्रूव हो सकता है, नहीं तो पूरा पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का तैयारी हो सकता है, रिवीजन हो सकता है, या टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो ललन कोचिंग क्लासेस या ललन इंटीग्रेटेड एकेडमी में ऐसा कोई प्रोग्राम है जिससे वो क्रैश में शॉर्ट टर्म में वो सारी चीज का रिवीजन हो जाए? तो अगर ऐसा कोई प्लान है या कोर्स है तो हमारे मीडियम के माध्यम से आप उन्हें बताएं। बिल्कुल, हमारे क्रैश कोर्स चालू हो चुका है और क्रैश कोर्स रिसेंटली चालू हुआ है, जस्ट 1 वीक बिफोर। तो कहीं ना कहीं अभी एडमिशन चालू है और बच्चे जल्दी ज्वाइन करें, एकदम डिले ना करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्रैश कोर्स से स्टूडेंट्स को कैसे एडवांटेज है, क्रैश कोर्स में बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टीज जो है असाइंड है, जो पढ़ा रहे हैं, और वो लोग कंटेंट को मतलब एक स्मार्ट टीचिंग प्रोवाइड करेंगे। कंटेंट बेस्ड, कैसे कंटेंट बेस्ड हो गया, मतलब मान लीजिए एक होता है कि प्रीवियस ईयर्स एनालिसिस से हम लोग को पता रहता है कि कौन सा टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कम पीरियड में पूरा A to Z सिलेबस तो हम लोग जैसे 2 साल में पढ़ाते हैं वैसे तो नहीं पढ़ा सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो कंटेंट बेस्ड में जो क्विक लर्निंग एक स्मार्ट वे पे
बिल्कुल वो करवाया जाएगा और साथ में मतलब शॉर्ट ट्रिक्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। कॉन्सेप्ट के साथ शॉर्ट ट्रिक, ऐसा नहीं कि सिर्फ शॉर्ट ट्रिक ही प्रोवाइड करेंगे, तो वहां पर हम लोग का फायदा है। साथ में बिल्कुल हम लोग का टेस्ट सीरीज भी है और टेस्ट सीरीज होने का ये फायदा है कि बच्चे जो है एक जज कर पाएंगे कि मतलब बहुत सारे बच्चों के बीच में नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग रीजन के बच्चों में वो कहाँ खड़े हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं घर पे तैयारी कर रहा हूँ लेकिन मैं कहाँ खड़ा हूँ वो सिर्फ जाके एग्जामिनेशन हॉल में डिसाइड करना, एग्जामिनेशन हॉल का रिजल्ट से डिसाइड करना, वो कोई एक स्मार्ट अप्रोच है ही नहीं। उससे पहले अगर आप खुद को जज करेंगे तो आप अपना परफॉर्मेंस को रेक्टिफाई कर पाएंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में क्रैश कोर्स का ये भी फायदा है कि डीपीपी मिलेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास लैक ऑफ मटेरियल्स के लिए भी प्रॉब्लम होता है, तो डीपीपी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। तो वो डीपीपी जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, तो वो जैसे उनको मिलेगा तो वहां पर बहुत तरह के क्वेश्चंस होंगे जो वो लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। आपसे बात करके बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ कि आने वाले जो भी व्यूअर्स देखेंगे इसे वो बहुत इससे फायदा उठाएंगे और उनके आने वाले एग्जाम्स में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। So thank you once again sir for taking out your precious time from your busy schedule to guide every our student viewers for their smooth preparation. And for our viewers, हम लोग इसी तरह से और भी कंटेंट लाते रहेंगे। हमारे नेक्स्ट सेशन में और भी एक्सपीरियंस फैकल्टी, क्षितिज बोरा सर जैसे एक्सपीरियंस फैकल्टी और भी इनवाइट करेंगे। तो उस अपडेट के लिए और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक कर दें ताकि आपको जैसे ही वीडियो आपको मालूम चले। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो आप जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम ग्रो कर पाए और ज्यादा से ज्यादा असम के बच्चों को फायदा पहुंचा पाए। थैंक यू वंस अगेन।